Dear students, our next topic is free radical substitution reactions of alkanes. In this lecture, we will discuss about the reactivity of alkanes, introduction to free radical substitution, halogenation of alkanes, chlorination, bromination, iodination, and fluorination. First of all, reactivity of alkanes. As you know that alkanes are also known as paraffins. The word paraffin is derived from two words, param which means little, affins which means reactivity. So alkanes are less reactive compounds. As you know that at ordinary temperature alkanes are unreactive towards most of the reagent. यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अल्केन बहुत से कॉमन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो बहुत स्टेबल होते हैं. Now, what is the reason of stability of alkane? The most common reason of stability of alkane is strength of CH bond. अल्केन का जो CH बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो स्टेबल होता है. उसको ब्रेक करने के लिए 415 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है. यानी अगर 6.023 इंटू 10⁻23 CH बॉन्ड्स हों तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको 415 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है. Alkanes are less reactive and more stable than alkenes and alkynes. As you know that the reactivity of alkanes is very less, so they are stable, and they are stable as compared to alkenes and alkynes. In other words, we can say that alkenes and alkynes are more reactive. As you know that alkanes are saturated hydrocarbons. It means that the valencies of all the carbon atoms are fully satisfied. Therefore, they are stable and can't undergo addition reaction. You know that addition reaction is very common in our organic chemistry, but it is not possible for alkane because they are saturated. They consist of maximum amount of hydrogen. In most addition reaction, if we have alkene or alkyne, they can add hydrogen because they are unsaturated. They are not satisfied, but alkanes can't add hydrogen or any other reagent. Elimination is also not possible in case of alkane. This is due to the stability of CH and CC bond. You know that CH is carbon hydrogen sigma bond, this is carbon carbon sigma bond. These are single bond and they require large amount of energy, so they are stable. So it is not possible to remove an atom or group of atom from alkane in most of the cases. The substitution is very common reaction in case of alkane. It is the characteristic reaction of alkane. This is not, sorry, this is actually alkane. This is not alkyne. The substitution is characteristic of alkanes because in case of alkyne or alkene they mostly undergo addition reaction. But this you can you should correct this word. This is actually alkane. Okay. Hydrogen can be substituted with other atoms such as halogens. Hydrogen of alkane can be substituted with other atoms, and in most of the cases the hydrogen of alkane is substituted with halogens. What are halogens? Halogens are fluorine, chlorine, bromine or iodine. Alkanes undergo substitution reaction through free radical mechanism. यानी अल्केन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो आमतौर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं. Acids, bases and some other prominent reagent cannot react with alkanes. Actually, you know that alkanes are stable. Due to their stability, they can't react with some common reagents like acids, bases, and there are some other compounds which cannot react with alkanes. This is due to their stability. One of the other common reaction that is possible in alkane, that this reaction is combustion reaction.
Before this, we discussed about the substitution reaction that is also possible in alkane. यानी अल्केन में सब्सटीट्यूशन के बाद एक और रिएक्शन पॉसिबल होता है जिसको हम कंबस्टन कहते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन रिएक्शन इन डेली लाइफ. वी आर यूजिंग मीथेन. मीथेन को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उसमें जब वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है, उसकी जो बर्निंग का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसे कंबस्टन कहते हैं. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और large amount of heat energy produce होती है. So this reaction is very important in daily life. Now free radical substitution reactions. Now what are free radical substitution reactions? The reaction involve replacement of an atom or group of atoms as free radical by another free radical is called free radical substitution reaction. एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है कि जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल से आप रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से. अब अगर वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रेडिकल की फॉर्म में आप उससे रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह एक और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप रेडिकल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो जब एक ग्रुप आप निकालेंगे उसकी जगह एक दूसरा ग्रुप आप लेके आएंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन होगी. अब आप रेडिकल की फॉर्म में निकाल रहे हैं और रेडिकल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो उसको फिर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद अदर फ्री रेडिकल्स. आमतौर पर अल्केन में क्या होता है, अल्केन का जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसमें अल्केन का जो हाइड्रोजन होता है, जो कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ. जिस तरह अगर हम हेलोजन के साथ उसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो अल्केन है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो मोस्टली चेन रिएक्शन होता है. यानी अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसे रिएक्टेंट मिलते रहते हैं और रेडिकल उसके अंदर मौजूद होता है. तो ये एक चेन रिएक्शन होता है. यानी ये आमतौर पर स्टॉप नहीं होता, ये उसी वक्त स्टॉप होगा जब आमतौर पर रेडिकल जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं या आपके रिएक्टेंट जो है वो वहाँ पे रिएक्शन में मौजूद नहीं होंगे, उस वक्त ये रिएक्शन स्टॉप होता है. अदरवाइज ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन कहते हैं. फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन जो होता है वो आमतौर पर 3 स्टेप्स में होता है: इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. अब हम देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. As you know that this is one of the most common example of free radical substitution reactions of alkanes. Now, what is the definition of halogenation of alkanes? Replacement of an atom or group of atoms by another atom or group of atoms in a molecule is known as substitution reaction. When the substituent is halogen, the reaction is known as halogenation. यानी सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब आप रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस का मतलब है कि उसको रिमूव करके उसकी जगह कोई और ग्रुप आप लाते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. अब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है यानी जो रिप्लेस करने वाला एटम है, अगर वो हेलोजन है तो उसको फिर हम उस रिएक्शन को हेलोजनेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, मीथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं. तो अगर आप किसी एक हाइड्रोजन को जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस कर लें, अब क्लोरीन एक हेलोजन है, तो आपके पास वो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा यानी अल्काइल क्लोराइड बनेगा. अब जो आपका अल्काइल क्लोराइड वहाँ पे बनेगा वो किस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन. उसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, वो हेलोजन है, क्लोरीन इज हेलोजन. तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूएंट यानी जो रिप्लेस करने वाला आइटम है, तो उसको हम हेलोजनेशन कहेंगे. हेलोजेंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. हेलोजेंस को आमतौर पर हम कैपिटल एक्स से जाहिर करते हैं. इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज मोर कॉमन इन अल्केन्स. आपने याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तमाम अल्केन्स की जो है वो हेलोजनेशन कर सकते हैं. यानी अल्केन की फ्लोरीनेशन भी होती है, क्लोरीनेशन भी होती है, ब्रोमिनेशन भी होती है, आयोडीनेशन भी होती है. अब फ्लोरीनेशन जो है इतना जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है कि उसको हम आमतौर पर कंट्रोल नहीं कर पाते. उसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ नॉट
सुटेबल रिएक्शन। उसके बाद जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है वो सूटेबल रिएक्शन है, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी इनकी होती है, तो इसलिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो बहुत कॉमन रिएक्शन है। द रिएक्शन टेक प्लेस आइदर ऑन हीटिंग एट 250 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। याद रखना है कि जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हीट के थ्रू उस रिएक्शन को प्रोसीड करें या आप उसको लाइट के थ्रू प्रोसीड करें। तो अगर आप हीट के थ्रू करेंगे तो वो आपका थर्मल रिएक्शन कहलाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत होती है, 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर दरकार होता है। और अगर आपके पास लाइट है तो आप लाइट की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में किया जाता है। तो लाइट की मौजूदगी में मोस्ट ऑफ द केसेस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ जो है वो जिस तरह ब्रोमिनेशन है आपके पास वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए फिर साथ आपने जो है वो टेम्परेचर भी देना है और लाइट भी देनी है। तो ओवरऑल जो है हमारे पास जो है वो यानी हीट एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए और लाइट एनर्जी, और दोनों भी बहुत से केसेस में हम यूज़ करते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। अब जब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन ये एक रिएक्शन है, जब ये कंप्लीट होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्केन में हाइड्रोजन की जगह कुछ हेलोजन आ जाएंगे, तो इसलिए हम उनको हेलो अल्केन्स कहते हैं या हम उनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। हेलोजिनेशन इज नॉट फेवरेबल एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, आपने याद रखना है कि हेलोजिनेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे अगर आप करना चाहें लाइट के एब्सेंस में, यानी लाइट की गैर मौजूदगी में, तो आप कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी इससे पहली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि हेलोजिनेशन को अगर आप हीट के थ्रू करेंगे तो फिर आपको मोर देन 200 टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, याद रखिएगा कि हेलोजन जो होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। सो मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन एंड लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर मोर कॉमन, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दो रिएक्शन इसलिए कॉमन है कि इनकी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी इनकी आ रही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ओके, यहाँ पे अभी अल्केन का फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ दिया गया है। अल्केन को जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। इसमें अब दो क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन को निकालेगा HCl बनाएगा और दूसरा यहाँ पे H की जगह फिट हो जाएगा, तो आपके पास अल्काइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन जो है अगर आप लाइट की मौजूदगी में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है, दैट इज़ रूम टेम्परेचर, यानी आप लाइट की मौजूदगी में क्लोरीनेशन जस्ट रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ दिस क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखें अल्केन को हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी ब्रोमीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन chlorine, therefore it require 127 degree temperature that is higher than room temperature। तो इससे जब HBr से रिप्लेस होगा, इसकी जगह Br आ जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और साथ आपके पास HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड बन जाएगा। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन। इस रिएक्शन में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से। ओके, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हेलोजिनेशन जो होती है उसका मैकेनिज्म क्या होगा। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स प्रोसीड्स बाय ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखना है कि अल्केन्स की जो हेलोजिनेशन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वो 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। इन अदर वर्ड्स हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। जाहिर है हेलोजिनेशन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो वो भी 3 स्टेप्स में होगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड
चेन टर्मिनेशन। इसमें इनिशिएशन क्या है, ऐसा स्टेप जिसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है। प्रोपगेशन वो जो आपका रेडिकल इनिशिएशन में प्रोड्यूस होता है, वो आगे जो है वो प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलाव, यानी रिएक्शन जो है वो फिर कंटिन्यू हो जाता है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रेडिकल जो है नॉन रेडिकल के साथ मिलकर फिर रेडिकल बनाता है, वो रेडिकल एक और नॉन रेडिकल के साथ मिलता है। इस तरह हर स्टेप में आपके पास एक रेडिकल बनता रहता है। उस वक्त तक रिएक्शन कंटिन्यू होगा जब तक आपके रिएक्टेंट आपके रेडिकल मौजूद होंगे, और जब आपके पास रेडिकल आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो चेन टर्मिनेशन हो जाता है। We will consider the example of methane to study free radical mechanism of halogenation of alkanes. Actually methane is more common example. ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, यानी मैकेनिज्म हम मीथेन में देखेंगे। मीथेन की हेलोजनेशन का हम मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे मीथेन की हेलोजनेशन में भी क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, तो हम क्लोरीनेशन देखेंगे मीथेन की। ओके, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। तो a replacement of hydrogen of alkane by chlorine atom is called chlorination of alkane, proceed through free radical mechanism. इसमें अब मीथेन की एग्जांपल, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम मीथेन की एग्जांपल देखेंगे। पॉलीक्लोरिनेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ मीथेन। अब इसमें देखें, अब पॉलीक्लोरिनेशन हो रही है, 2 क्लोरीन आ रहे हैं, 3 क्लोरीन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो अगर आप मीथेन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मीथेन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो पॉलीक्लोरिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी उसमें फिर क्लोरीन की रेशियो कम हो जाती है। तो मीथेन ज़्यादा होगी तो फिर उसमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा बनेगी, यानी आपके पास क्लोरोमीथेन फिर ज़्यादा बनेगा। पॉलीक्लोरिनेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन। अगर आप पॉलीक्लोरिनेशन को फेवर करना चाह रहे हैं तो जितनी ज़्यादा आप क्लोरीन यूज़ करेंगे और मीथेन की रेशियो आप कम रखेंगे, फिर उसमें पॉलीक्लोरिनेशन के चांसेस होते हैं। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन के केस में जो है वो मोनोक्लोरिनेशन भी होती है और पॉलीक्लोरिनेशन भी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो मोनोक्लोरिनेशन होगी, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसे फिर पॉलीक्लोरिनेशन कंसिडर करते हैं। ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन मीथेन एंड इथेन गिव ओनली 1 प्रोडक्ट ईच। मोनोक्लोरिनेशन क्या है कि आपका जो अल्केन है उस पूरे अल्केन में कोई एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन उसमें मौजूद होंगे, तो जस्ट 1 हेलोजन आपके पास उसमें आएगा, इसीलिए हम इसको मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं। तो मीथेन और इथेन की अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक प्रोडक्ट आपको मीथेन का मिलेगा और इथेन का भी आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके मीथेन और इथेन के हाइड्रोजन सेम होते हैं। Propane and other higher alkanes give variety of product depending on the position of hydrogen to be replaced. ठीक है, अब प्रोपेन और हायर अल्केन जो होते हैं, यानी उनसे बड़े जो अल्केन होते हैं जिनमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, उनमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। एज इन केस ऑफ प्रोपेन एंड अदर हायर अल्केन, हाइड्रोजन एटम इज इन डिफरेंट पोजीशंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मीथेन है। अब इसकी हम क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, याद रखिएगा हम इसकी मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक है, अब इसमें तमाम हाइड्रोजन सेम है, ये हाइड्रोजन ये सब, अगर क्लोरीन इधर आ जाए इधर आ जाए इधर, एक ही बात है, लेकिन एक क्लोरीन आना चाहिए क्योंकि हम मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह मीथेन को देखें तो ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये एक जैसे हैं, आप इनको कंसिडर करें या इनको। ठीक है, ये ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, इसलिए आप किसी को भी, इसका एक और तरीका भी है कि आप उनको रिप्लेस करके उसका IUPAC नेम चेक करें। अब आप इसकी जगह क्लोरीन लिखें, इसकी जगह इसकी नाम क्लोरोमीथेन ही होगा। इसी तरह आप इसकी जगह क्लोरीन लिखें, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह किसी की जगह लिखें, नाम क्या होगा, क्लोरोईथेन। ठीक है, अब अगर आप एक स्ट्रक्चर में हमने राइट साइड पे क्लोरीन को लगा दिया और एक में हमने, यानी एक में यहाँ इसको रिप्लेस किया और एक में इसको किया है, लेकिन ये दोनों सेम है। इनके अगर IUPAC नाम आप देखें, ये भी क्लोरोईथेन है, ये भी क्लोरोईथेन है, दिस इज एक्चुअली क्लोरोईथेन। तो बोथ आर सेम products, they are not different molecule, they are same.
अगर आपके पास प्रोपेन है, अब याद रखना है कि प्रोपेन के केस में आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन हैं, ठीक है। आमतौर पर हम कहते हैं ना प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब देखें इसके साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, ये प्राइमरी है। इसके साथ एक अटैच है, ये प्राइमरी है। बट दिस इज सेकेंडरी कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली दो अटैच हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर हेयर, ठीक है। आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी है और ये भी। ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन, ये सेम है, यानी ये 6 हाइड्रोजन सेम है, ये दो डिफरेंट है। इनकी जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 क्लोरो कैसे बनेगा, इनमें से कोई एक क्लोरीन रिप्लेस होगा, और 2 क्लोरो कैसे बनेगा, इनमें से कोई एक क्लोरीन रिप्लेस होगा। तो आसान सी बात है, अब हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका IUPAC नेम चेक करें। अगर डिफरेंट IUPAC नेम आपके पास आएंगे तो आप समझ लें कि वो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट उसमें बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोपेन जो है उसकी जब आप क्लोरीनेशन करेंगे, मोनोक्लोरीनेशन, तो उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 क्लोरोप्रोपेन होगा और एक 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो ब्यूटेन है, उसकी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ब्यूटेन की क्लोरीनेशन से आपके पास जो है वो 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज एक्चुअली एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। तो इसकी जो है वो क्लोरीनेशन करेंगे तो 1 क्लोरो। अब आपके पास यहाँ पे भी देखें, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये सेकेंडरी पोजीशन है, ये दो, और ये पोजीशन, और ये प्राइमरी है। इसलिए आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी से ये प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो, इस इधर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन, 1 क्लोरोब्यूटेन, और सेकेंडरी से यहाँ से एक ही बात है, अगर आप इधर से करें वही IUPAC नेम बनेगा, इधर से भी वही बनेगा, तो ये दोनों पोजीशन सेम बन रही है, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरीके से आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसकी आप क्लोरीनेशन करें तो आपके पास यहाँ पे कितनी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट। देखें आपके पास ये 3 मिथाइल हैं, ये और ये तीनों सेम है, ये प्राइमरी हैं, और ये आपके पास टर्शरी पोजीशन बन रही है, क्योंकि ऐसा कार्बन जिसका डायरेक्टली 3 कार्बन हो वो टर्शरी होता है। तो आपके पास जो है वो ये प्राइमरी और ये टर्शरी है। तो प्राइमरी पे किसी एक जगह पे आप क्लोरीन लगा दें, इधर लगा दें, इधर या इधर, यहाँ पे आपने इधर लगाया है ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और दूसरे में आप इधर भी एक हाइड्रोजन है, ये टर्शरी पोजीशन है, इधर CH बॉन्ड मौजूद है, याद रखना है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिर इस केस में दिस इज एक्चुअली Cl, इसको आपने रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ये थोड़ी कंपोजिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपने Cl लिखना है, दिस इज नॉट H, दिस इज एक्चुअली Cl, तो इसकी आप करेक्शन कर लें। तो एक्चुअली ये आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये आपके पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपके पास है, यहाँ पे ये टर्शरी हाइड्रोजन की रिप्लेस होने से बनेगा। यहाँ पे आप Cl लगा लें, नाम चेंज हो जाएगा। वैसे तो ये रिएक्टेंट वाला नाम ही आ रहा है, क्योंकि हमने वही लिखा है तो उसका नाम वही आएगा, तो इसको आप यहाँ पे Cl कर दें। उसके बाद पेंटेन, पेंटेन जो है वो अगर आप उसकी क्लोरीनेशन करें तो आपके पास यहाँ पे आप देखना है आपने कि आपके पास ये CH3, ये CH3, ये आपके पास सेकेंडरी पोजीशन 3 बन रही है, लेकिन चूंकि पोजीशन अगर आप देखें नंबरिंग के लिहाज से तो वो डिफरेंट बनेगी। अगर आप उनके IUPAC नेम लिखें उन कंपाउंड के, तो वो डिफरेंट नाम बनेंगे। जब डिफरेंट नाम बनेंगे इसका मतलब है वो डिफरेंट पोजीशन बन रही है। तो पहले यहाँ पे आप क्लोरीन लगाएं, यहाँ पे एक ही नाम बनेगा आपके पास, वो 1 क्लोरोपेंटेन होगा। फिर आप अगर यहाँ पे लगाते हैं तो वो 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। फिर आप उसके बाद यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लगाएंगे इधर से आएंगे 1 2 3, इधर से आएंगे 1 2 3, किस तरह अब ये देख सकते हैं, दिस इज 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, दिस इज 2 क्लोरो, दिस इज 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब आप अगर इधर लगाएंगे तो 2 क्लोरो हो जाएगा, इधर लगाएंगे तो 1 क्लोरो हो जाएगा, वो फिर इनके साथ मैच करेंगे। 3 तरह के प्रोडक्ट इससे पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिथाइल है CH3, ये सेम है। अब एक पोजीशन आपकी ये बन गई, एक पोजीशन आपकी ये और एक ये है, ठीक है। तो एक ये आपकी 4 पोजीशन है, एक ये मिथाइल वाली, एक ये टर्शरी पोजीशन, एक ये सेकेंडरी और एक ये वाली प्राइमरी। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी इससे डिफरेंट है क्योंकि इसके साथ CH2 अटैच है, ठीक है। तो इस वजह से ओवरऑल आपके पास 4 पोजीशन बन रही हैं। तो सबसे पहले हमने ये मिथाइल का हाइड्रोजन निकाला है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना। फिर हमने ये टर्शरी निकाला है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना। फिर हमने ये वाला सेकेंडरी निकाला है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है इस जगह से, ये जो CH3 ग्रुप इधर आ रहा है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इन चारों नाम को आप चेक करें तो ये नाम डिफरेंट है। इसका मतलब है कि 4 तरह के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ये आपका रिएक्टेंट दे सकता है। Different isomeric monochloroalkanes are obtained in different amounts because the different types of hydrogen atoms have different reactivity for substitution. आमतौर पर आपने याद रखना है कि आपके पास जो मोनोक्लोरोअल्केन बनेंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे बनेंगे। अब उसमें कोई प्राइमरी पोजीशन होगी, कोई सेकेंडरी होगी, कोई टर्शरी होगी, तो उनकी जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट बनेगी, क्योंकि हर पोजीशन के अंदर जो रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। इस वजह से जब रेडिकल की स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। Actually, after removal of hydrogen by radical initiator, we get a free radical. As free radical is an electron deficient species, octet उसका क्या होता है? Incomplete. Therefore, its stability order is just like carbonium ion. Greater the number of alkyl groups with free radical carbon increases its stability due to electron donating effect of alkyl groups. Alkyl groups overcome deficiency of electron at radical carbon. एक्चुअली होता कुछ इस तरह है कि जब फ्री रेडिकल रिएक्शन किसी अल्केन में होता है तो सबसे पहले जो है वो आपका जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो आपका वो जो अल्केन है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो यानी डिफरेंट किस्म के आपके पास रेडिकल बनेंगे। अगर वो प्राइमरी से जा रहा है वो प्राइमरी रेडिकल होगा, सेकेंडरी से जा रहा है सेकेंडरी रेडिकल, टर्शरी से जा रहा है टर्शरी रेडिकल। अब जो रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वैसे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होता है, आप समझ रहे होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसी तरह होती है जिस तरह कार्बोनियम आयन की है। कार्बोनियम आयन में ये होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें मतलब डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो फ्री रेडिकल उसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन दोनों में डेफिशिएंसी होती है। उनके जो स्टेबिलिटी आर्डर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जिस तरह हम कार्बोनियम आयन का फ्री स्टेबिलिटी आर्डर देखते हैं वही स्टेबिलिटी आर्डर हमारे पास फ्री रेडिकल को होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी उनकी डोनेशन ज़्यादा होगी फ्री रेडिकल कार्बन को। तो फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इस तरह ओवरकम होगी, यानी वो कम हो जाएगी और वो फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह कार्बोनियम आयन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनियम कार्बन को स्टेबल करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो फ्री रेडिकल कार्बन को भी स्टेबल करते हैं। ओके, रिएक्टिविटी आर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ वेरियस हाइड्रोजन एटम्स, यानी जो हाइड्रोजन एटम्स आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं, तो उनमें से कौन सा हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस होगा, आपने ये याद रखना है कि अब हाइड्रोजन जो है वो टर्शरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी, वो डिपेंड करता है। अगर वो टर्शरी कार्बन के साथ है तो वो टर्शरी हाइड्रोजन है, अगर वो सेकेंडरी के साथ है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी के साथ है तो प्राइमरी हाइड्रोजन है। टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ओके, नाउ लुक एट हेयर। आपके पास यहाँ पे जो है वो 2 मिथाइल प्रोपेन है और इसमें जो है वो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये टर्शरी हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन आपके हैं ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अब आपके पास पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये आमतौर पर क्वान्टिटेटिवली अगर देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी को जब हम देखते हैं तो ये ज़्यादा बनता है और ये कम बनता है।
यानी इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और इसकी हमारे पास कम होती है। तो जो दो प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं, एक ज़्यादा बन रहा है एक कम बन रहा है, तो एक को हम मेजर कहते हैं, एक को हम माइनर कहते हैं। अब ये क्यों मेजर बन रहा है? क्योंकि इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन आपका, ठीक है, यहाँ से जब ये हाइड्रोजन जाएगा, ये मैकेनिज्म में आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल जाएगा, बनेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बना? टर्शरी फ्री रेडिकल। दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। तो ये टर्शरी हाइड्रोजन जा रहा है। तो अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लोरीन आएगा और वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ये रेडिकल का बनना ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यही आपके रिएक्शन जो है वो उसको कंट्रोल करता है, यही स्टेप। तो रेडिकल जितना आसानी से बनेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। उसको याद रखना, किसी भी जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है तो वो जितना ज़्यादा बनेगा, तो जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा उतना उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत स्टेबल है, उसकी वजह क्या है? 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं। देखें, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप, इधर डोनेटिंग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ये यहाँ पे कम हो जाएगी। यानी जो टर्शरी कार्बन होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल जो होता है वो स्टेबल होता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, याद रखिएगा। ये देखें, प्राइमरी इधर जाए, इधर से जाए, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जस्ट यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। तो इस वजह से ये अनस्टेबल होगा, यानी ये लेस स्टेबल होगा। तो जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होता है उसका फिर जो प्रोडक्ट होता है वो कम होगा। जितना यानी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जितना वो लेस स्टेबल होगा उतना उसका प्रोडक्ट कम होगा। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। यहाँ पे हमें डिसोसिएशन एनर्जी से भी इन फ्री रेडिकल यानी मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का पता चल सकता है। अब यहाँ पे आप देखें, ये टर्शरी हाइड्रोजन है, तो इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 381 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इससे टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा। अब यहाँ से सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। 395 किलो जूल एनर्जी, आपको ज़्यादा एनर्जी दरकार है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टर्शरी है दैट इज़ मोर रिएक्टिव दैन, यानी जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको ब्रेक होने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। तो अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, इसको ज़्यादा एनर्जी दरकार है। इसको, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, इसको और ज़्यादा एनर्जी दरकार है, 410 किलो जूल, ठीक है। ये प्रोपेन वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो, इस केस में इसको जो है वो 410 किलो जूल एनर्जी दरकार है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक्चुअली आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन है। दिस इज 2 मिथाइल, दिस इज जस्ट प्रोपेन। ये 2 मिथाइल प्रोपेन है और ये प्रोपेन, इधर मिथाइल लगा हुआ है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। इसकी भी 410 किलो जूल एनर्जी इसमें, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी आप रिमूव कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ भी एक डोनेटिंग ग्रुप है, इसके साथ भी है। इधर यहाँ पे आप देखें तो इस केस में भी एक डोनेटिंग ग्रुप है, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, प्राइमरी है, इसकी भी 410 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। और मीथेन के केस में जहाँ कार्बन के साथ कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, एक डोनेटिंग का भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब कोई भी ना हो तो फिर एनर्जी मज़ीद दरकार होगी। तो अब देखें, इसको 435 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए इस CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। Okay, stability of free radicals obtained by removal of various hydrogen atoms can be justified by following examples. यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी गई हैं, इनसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्यों हम कहते हैं कि टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल आपको दी गई है। अगर हमारे पास ब्यूटेन हो, उसको हम क्लोरीनेशन करें, उसकी मोनोक्लोरीनेशन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो बनेगा। तो अगर हमारे पास जो है वो, अगर परसेंटेज आप लें तो याद रखिएगा कि 28% ये बनता है और 72% ये मेजर हो गया और ये आपके पास माइनर हो गया। अब ये क्यों कम बन रहा है? अब जाहिर है ये प्राइमरी कार्बन से के ऊपर Cl आ रहा है, इसका फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा तो इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम होंगे। इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसका सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। यानी आपके पास टोटल 100 मॉलिक्यूल बने टोटल, यानी मोनोक्लोरो के, तो उसमें आपके पास जो है वो यहाँ पे 100 में से 28 आपके 1 क्लोरो होंगे और 72 आपके जो है वो 2 क्लोरो ब्यूटेन होंगे।
अब अगर यहाँ पे आप देखें टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन इसके अंदर, यानी ये जो आपका ये वाला कंपाउंड है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास देखें CH3 और CH3 ये प्राइमरी है, तो ये 3 जमा 3 कितने हुए 6 प्राइमरी हाइड्रोजन 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज होगी इसकी पर प्राइमरी, यानी ये जो टोटल परसेंटेज आपके पास आ रही है ये तमाम प्राइमरी हाइड्रोजन का इसके अंदर हिस्सा मौजूद है, तमाम हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक वक्त में नहीं करेंगे, एक वक्त में एक ही करेगा, लेकिन चांसेस सबके होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी फिर रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी उतना ज़्यादा फिर रिएक्शन का चांस होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो 28 आपके पास टोटल परसेंटेज है, आपके पास 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, प्राइमरी में कितने 6 हैं, तो 28 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर आता है 4.66% पर प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी इस परसेंटेज में एक प्राइमरी हाइड्रोजन का कितना ऐसा होगा 4.66। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो इस केस में सेकेंडरी को अगर आप देखें तो 2 जमा 2 कितने हुए 2 + 2 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो अब आप पर सेकेंडरी हाइड्रोजन परसेंटेज निकालें 72 डिवाइड बाई 4 18% पर सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन का जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें उसकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है। ठीक है, पर सेकेंडरी हाइड्रोजन, और पर प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास परसेंटेज कम बन रही है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि प्राइमरी जो फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल होता है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होता है और प्राइमरी का प्रोडक्ट कम होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे दूसरा एक और कंपाउंड आपको दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो एक 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और एक 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक ये प्राइमरी पोजीशन है। ठीक है, आप प्राइमरी पोजीशन पे 9 हाइड्रोजन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो 9 जगहों पे रिएक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 9 हाइड्रोजन यानी रिएक्शन के लिए रेडी है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो टोटल परसेंटेज बन रही है प्राइमरी की वो आपके पास 64 है, और यहाँ जो टर्शरी की बन रही है वो 36 है। ठीक है, यानी टोटल 100 मालिक्यूल आपके बनेंगे तो 64 इसके बनेगा 36। अब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि 64% है, इसका मतलब ये मेजर हो गया ये माइनर। यहाँ पे इस तरह हमने इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर सकते, यानी इस बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेजर है और ये माइनर है। एक्चुअली ये मेजर और ये माइनर है, आपने पर प्राइमरी हाइड्रोजन और पर टर्शरी हाइड्रोजन देखना है कि एक प्राइमरी हाइड्रोजन का जो है वो कितना ऐसा बन रहा है और एक टर्शरी का कितना बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखें टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास 9 है, परसेंटेज आपकी टोटल 64 आ रही है। अब 64 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 7.11% पर प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पे पर प्राइमरी हाइड्रोजन परसेंटेज कम हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर टर्शरी हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखें टोटल परसेंटेज है 36, आपके पास टर्शरी हाइड्रोजन है 1, तो 36 डिवाइड बाई 1 36% पर सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पर सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है आपके पास परसेंटेज ज़्यादा थी, यहाँ पे पर कम थी, यहाँ पे पर प्राइमरी कम है, यहाँ पे पर टर्शरी ज़्यादा है, बल्कि आपके सेकेंडरी से भी टर्शरी की ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टर्शरी इज़ मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी। ठीक है, और डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके जी, परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट वर्सेस पॉलीक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। याद रखिएगा कि जब हम अल्केन की क्लोरीनेशन करते हैं तो उनकी मोनोक्लोरीनेशन के साथ उनकी पॉलीक्लोरीनेशन भी होती है। अब यहाँ पे देखें 2 मिथाइल प्रोपेन की हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जो पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपके पास पॉलीक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी इसमें बनेंगे, पॉली में 2 क्लोरीन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, मोर देन 4 होंगे। ठीक है, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो ये हम टोटल परसेंटेज यहाँ पे ले रहे हैं, वहाँ पे तो हमने जस्ट जो है वो हमने ये देखना है कि ऊपर जो हमने देखा था वो हमने देखा था प्राइमरी सेकेंडरी के लिहाज से हमने देखे थे, उस लिहाज से हमने परसेंटेज देखी है। पोली को तो हमने वो कंसिडर ही नहीं किया, हमने जस्ट मोनो को कंसिडर किया था। तो आपके पास यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड कितनी बनेगी, वो 75%। ठीक है, यानी 75% आपके पास जो है वो क्या बन गया, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है।
और 25% पॉली, 75 और 25 100। तो यानी इसका मतलब ये है कि फिर भी आपके पास जो मोनोक्लोरिनेशन है वो ज़्यादा हो रही है और पॉलीक्लोरिनेशन आमतौर पर कम होती है, लेकिन हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलीक्लोरिनेशन मोनोक्लोरिनेशन के साथ पैरेलल चलती है, यानी साथ साथ चलती है। ये दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी पॉलीक्लोरिनेशन भी होता है अल्केन का और मोनोक्लोरिनेशन भी। ओके, इसके बाद क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन विद सल्फोराइल क्लोराइड, SO2Cl2 इसका फार्मूला है सल्फोराइल क्लोराइड का। इट इज़ ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। एक थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, वो भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है और ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री क्लोरीन यूज़ करेंगे, ठीक है। सम टाइम आप जो है उसके लिए कोई क्लोरीनेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको क्लोरीन ही देता है, लेकिन वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म करेगा, एक सीक्वेंस में उसके रिएक्शन होंगे, फिर जाके आपको क्लोरीन मिलेगा। सल्फोराइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव देन क्लोरीन। अब प्रॉब्लम क्या है कि सल्फोराइल क्लोराइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और याद रखिएगा ये रूल होता है मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, लेस सिलेक्टिव मोर रिएक्टिव। यानी जो आपके पास मतलब जो कोई चीज़ जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो उसकी सिलेक्टिविटी फिर कम होती है, ठीक है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैंने फ़लाँ जगह अटैक करना है, फ़लाँ जगह प्राइमरी पे करना है, सेकेंडरी पे करना है, टर्शरी पे, वो इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ता, वो हर जगह पे अटैक कर लेता है। और जो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर सिलेक्टिव होता है। वो फिर जगह देखेगा कि अब चूंकि वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो फिर वो अपनी एक खास पोजीशन पे, जिस तरह आप देखें ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं तो ब्रोमीन मोर मतलब ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है तो ये मोर सिलेक्टिव है, तो ये फिर टर्शरी पे इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्लोरीन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सल्फराइल क्लोराइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए क्लोरीन के मुकाबले में ये क्या होता है, लेस सिलेक्टिव होता है। फिर ये प्राइमरी के ऊपर भी ये रिएक्शन कर सकता है, सेकेंडरी पे, टर्शरी पे भी, इसमें रेशियो का इतना फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी कम है, उसमें फ़र्क ज़्यादा आएगा। ओके, क्लोरीनेशन विद SO2Cl2 पे आप देख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन हमने इसके साथ ट्रीट किया तो ये अल्केन बन गया, SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट बन गए। इसमें यूज़ क्या होता है कि लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यानी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड स्मॉल अमाउंट में यूज़ करेंगे और रेडिकल इनिशिएटर के तौर पर काम करते हैं, तब आपका रिएक्शन होगा। दिस इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है ये आपके पास, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की हम क्या करेंगे, रेडिकल इनिशिएटर का सोर्स है, इसकी होमोलैटिक क्लीवेज जहाँ से करेंगे। ये देखें एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, आपके पास दो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। सी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अब रेडिकल इनिशिएटर जो होता है यहाँ पे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ से एक आर पे जाएगा, तो ये CO2 निकल जाएगा इधर से, ठीक है। और आर रेडिकल जो है ना वो SO2Cl2 का ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। सल्फर के दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहे होते हैं और दो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ। तो इधर से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आर के साथ लेके जाएगा, एक एस को देगा, ये रेडिकल बन जाएगा SO2Cl रेडिकल, और ये RCl, ठीक है। अब ये आर कहाँ से आया, ये आपके उस पेरोक्साइड से आया है यार। उसके बाद ये जो वाला जो आपका रेडिकल है, इसकी फर्दर रिएक्शन होगा, इससे Cl निकलेगा और SO2 गुड लीविंग ग्रुप है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो चला जाएगा। Cl रेडिकल जो है आपका जो अल्केन है, ये वाला अल्केन, ठीक है, इसके साथ ये करेगा, इसमें R प्राइम से ये कलर से आप इसको शो कर सकते हैं, ये R और ये R डिफरेंट है आपके, ठीक है। इसके साथ जब आप जो है वो H को RH को मिलाएंगे यानी अल्केन को, तो इसका H क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करेगा, Cl बना देगा। आर रेडिकल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन है जिस तरह हमने वहाँ पे क्लोरीनेशन वाला मीथेन में पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो Cl रेडिकल जो इधर से Cl रेडिकल निकालेगा और इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद नॉन रेडिकल, तो दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास ये अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। मोनोक्लोरिनेशन इसकी यहाँ पे हो गई, जस्ट मोनोक्लोरिनेशन हमने इसमें इसकी शो की हुई है। ओके, नाउ ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्लोरिनेशन बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो ब्रोमिनेशन इज लेस कॉमन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज सिमिलर टू क्लोरिनेशन, वही मैकेनिज्म है, उसी तरह की सारी केमिस्ट्री है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
बट ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव दैन क्लोरीन। आपको बताया था जो चीज़ लेस रिएक्टिव होगी वो मोर सिलेक्टिव होगी। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन से कम है। मेनली अटैक्स एट टर्शरी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब है कि ये जो ज़्यादा अच्छी पोजीशन होगी, जो इसके लिए सूटेबल होगी, उस पर ही ये अटैक करेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये 2 मिथाइल प्रोपेन, इसकी ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट के साथ आपको टेम्परेचर चाहिए जो प्रूव कर रहा है कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका प्राइमरी पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बनाएं यहाँ पर बनाएं, ये की बात है। ठीक है, ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये प्राइमरी, तो आपके पास ट्रेस अमाउंट मीन बहुत कम अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका ग्रेटर देन 99% बनेगा, यानी 99% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के इसमें चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पे बन रहा है? दिस इज योर टर्शरी पोजीशन, ये एक हाइड्रोजन है टर्शरी। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव दैन क्लोरीन, इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। द रेशियो ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेशियो क्या बन रही है टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी 1681, यानी अगर पर यूनिट टाइम प्राइमरी का एक वो ब्रोमीन एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसी टाइम में वो सेकेंडरी के 80 कर लेगा और उसी टाइम में वो टर्शरी के जो है वो 1600 कर सकता है। ठीक है, बट एट 127 जो कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपको ये बता रही है कि ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और मोर सिलेक्टिव। आयोडीनेशन, among halogens iodine is least reactive towards halogens, यानी towards alkane, यानी आपके पास जो हेलोजन में आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, ये बॉटम पे आ रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले हम फ्लोरीन ले रहे हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो रिएक्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से मतलब ये बहुत कम रिएक्शन आमतौर पर करता है। इसको इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करते, इसकी एप्लीकेशन भी कम है। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी लेस रिएक्टिविटी का एक प्रूफ हमारे पास ये है कि आयोडीनेशन जो होता है अल्केन की वो रिवर्सिबल होता है। तो अभी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो फेवरेबल नहीं है। अब वो रिवर्स क्यों होता है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट अनस्टेबल होते हैं, यानी रिएक्टिव होते हैं, तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएक्टेंट में। आयोडो अल्केन्स आर रिड्यूस्ड बैक टू अल्केन बाय HI। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट हेलोजन एसिड, तो ये अगर आप अल्काइल आयोडाइड बना देंगे तो अब डेफिनेटली आयोडाइड जो होता है वो एज ए लिविंग ग्रुप काम करता है और आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आपका जो है वो फिर रिवर्स होने के चांस होते हैं, तो ये नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन दोबारा वापस आ सकता है इस रिएक्शन में, तो इसीलिए ये रिएक्शन रिवर्स होने के चांस होते हैं। यानी फॉरवर्ड में आप क्या कह रहे हैं? दिस इज योर फॉरवर्ड रिएक्शन, आयोडीन को हाइड्रोजन को आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, और बैकवर्ड में क्या होगा कि आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन ये आयोडीन आपस में जो है वो ये कंबाइन हो जाएंगे, I2 बन जाएगा। ठीक है, और साथ अल्केन, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा आपके रिएक्टेंट में। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस रिएक्शन में? रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी ये प्रूव कर रही है कि आयोडीन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। However, if HI is destroyed as soon as it is formed by an oxidizing agent such as HiO3, HNO3, HGO, etc., then equilibrium can be shifted towards products। याद रखना है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो रिएक्शन उसी वक्त फेवरेबल होगा जब वो फॉरवर्ड में जाएगा। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि HI को साथ साथ हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? उसका किसी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ये जो है वो रीएजेंट है जिनके साथ इसका रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी अपनी रिडक्शन होती है, लेकिन वो दूसरे की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल होते हैं, जो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, HI जो है वो उसके 5 मोल आप लेंगे और
HiO3 का जो है वो 1 मोल लेंगे, इनको ट्रीट करेंगे तो 3 मोल ऑफ आयोडीन I2 और 3 मोल ऑफ वाटर बनेंगे आपके पास। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो HI है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आयोडीन में कन्वर्ट होना तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपका फिर रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहा है। देखिए डबल आपका एडवांटेज, आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है और आपका वो जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के तौर पर था वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन के कौन सा रिएक्टेंट आपको मिल रहा है? आयोडीन। आयोडीन आपको अल्केन नहीं मिल रहा। अल्केन अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब आपका वही पूरा रिएक्शन रिवर्स हुआ है। तो आयोडीन मिलना अच्छी बात है। आपका जो वो रिएक्टेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखें हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा और प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। तो हम आयोडीन को जो है बढ़ा रहे हैं इस रिएक्शन में, इस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो HI जो है जो प्रॉब्लम काज कर रहा है जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी होती है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फ्लोरीनेशन। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन एंड रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एक्सप्लोजन। यानी फ्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, उसके रिएक्शन को आमतौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। स्पेशल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरीनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए ज़ाहिर है जो रिएक्शन कंट्रोल ना हो तो उसके लिए फिर स्पेशल कंडीशन जो है वो ज़रूरी होती हैं। Fluorination of alkanes can be carried out by diluting fluorine with nitrogen। यानी हम प्योर फ्लोरीन लेंगे तो रिएक्शन बहुत जो है वो अनकंट्रोल्ड होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन हम उसको नाइट्रोजन जो कि स्टेबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसके साथ हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, यानी फ्लोरीन और नाइट्रोजन को मिक्स कर देते हैं। एंड कैरिंग आउट द रिएक्शन इन ए apparatus specially designed to remove the heat produced in the reaction because the reaction is highly exothermic। अब रिएक्शन चूँकि जो फ्लोरीन है उतना रिएक्टिव होता है कि उसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो फिर हमारा जो अपरेटस होता है, ठीक है, यानी ऐसे अपरेटस के अंदर जो है वो हम रिएक्शन कर रहे होते हैं कि जो हीट को जो है ना उसको रिमूव करें, ठीक है। क्योंकि हीट को साथ साथ रिमूव किया जाएगा तो फिर वो रिएक्शन फेवरेबल होगा आपका। ऑलरेडी आपने ये भी इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसमें हीट को आप रिमूव करेंगे तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये हीट इतनी ज़्यादा होती है इस रिएक्शन में, इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, तब जाके आपके पास जो है वो आप जो फ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अल्केन से वो पॉसिबल होते हैं। इफ़ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज़ नॉट रिमूव्ड, देखें अगर वो हीट हम रिमूव नहीं करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, then temperature may get so high and causes cracking resulting in formation of फ्लोरोअल्केन्स विद फीवर कार्बन एटम, यानी फ्रेगमेंटेशन काज हो जाएगी। आपके जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे उनकी भी फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं, आपके रिएक्टेंट की फ्रेगमेंटेशन के भी चांसेस होते हैं कि मतलब आपका मॉलिक्यूल टूट फूट का शिकार हो जाएगा अगर आप हीट को रिमूव नहीं करेंगे। हीट जो है वो फिर बॉन्ड ब्रेक करने के अंदर यूज़ होना शुरू हो जाती है, तो यानी लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट इज यूजुअली ए कम्प्लेक्स मिक्सचर, फिर वो मिक्सचर है उसको सेपरेट करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथेन, इसकी हम फ्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो ईथेन की फ्लोरीनेशन अब यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि इसकी मोनोफ्लोरीनेशन नहीं हो रही। इससे भी ये प्रूव हो रहा है कि ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। अब आपने क्लोरीनेशन में देखा था कि वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज में मोनोक्लोरीनेशन हो रही थी, लेकिन ये मोनोफ्लोरीनेशन नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फ्लोरीन एक ही पोजीशन पे आ गए इसमें। अब इसमें जो है वो 3 फ्लोरीन, 2 इस पे आ गए और 1 इस पे आ गए, इसमें 4 फ्लोरीन आ गए, ठीक है, तो नहीं 6 फ्लोरीन, सॉरी, ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपने कोई मीथेन यूज़ नहीं किया। अब ये कैसे बना? एक्चुअली ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है। अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक हो जाए और उसको एक और फ्लोरीन मिल जाए तो आपके पास जो है वो फिर यहाँ पे यानी कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे इसके फिर बनने के चांसेस होते हैं। तो वो कैसे होता है? वो हीट जो है ना वो इसको बनाती है आमतौर पर। अब यहाँ पे मोनो जो आपके पास फ्लोरोइथेन होता है, यानी ये मोनोफ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है। और इसी तरह आपके पास सिमेट्रिकल डाईफ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, यानी आपके पास CH2 एक कार्बन पे एक फ्लोरीन और दूसरे पे दूसरा फ्लोरीन, तो कहते हैं कि ये आमतौर पर ये प्रोडक्ट नहीं बनते। तो ये भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लोरीनेशन एंड फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता, उसमें आमतौर पर इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं।
तो इसमें ये नहीं बन रहा है, तो दिस इज ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, इट इज वेरी वेरी reactive. Okay, this is end of today's lecture. Thank you